Yes, sir. Okay. So this was how we determine displacement. अभी हो जाएगा या वापस से बताऊं और बताऊं? नहीं सर, हो जाएगा. Okay. So let's go back to displacement. So distance traveled मैंने आपको बता दिया, पोजीशन आपने समझ लिया था, प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे काम किए थे हमने पोजीशन की हेल्प से. देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हमने देख लिया, नहीं? देन डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं फटाफट. क्या था डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट. वापस से लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में. तो वेक्टर फॉर्म में हाउ डू वी एक्सप्रेस displacement vector if in time t, if in time t1 and t2 seconds position vector of particle be r1 vector and r2 vector, then displacement in t1 to t2 second is given by delta r vector is equal to r2 minus r. So displacement क्या होता है? Displacement is delta r vector. And what is delta r vector? Delta r vector is r2 vector minus r1 vector. I'll repeat. See, displacement कोई पूछे आपसे what is displacement? तो displacement is what? Displacement in any time interval t1 to t2 is r2 vector minus r1 vector. Final position minus initial position. Another notation for the same is delta r vector. Delta here stands for delta is change in rs position. So change in position vector, that is displacement vector. So textbooks में you will see a separate notation delta r vector. So delta r vector stands for vector. change in position vector, right? So change in position vector कह लो, वही आपका displacement है. Clear है? Yes sir. Okay. So ये notation please नहीं समझ में आया पूछते जाना है, because एक बार आगे निकल गए तो फिर कुछ समझ में आएगा नहीं. So this notation is clear. When I say delta r vector, आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए. अच्छा, I want to say displacement in a given time interval. So delta r vector is change in position vector, which is nothing but displacement vector. Okay? ठीक है. अब इसको x और y के टर्म्स में लिख के देखते हैं. Suppose at instant t1 you were at this point और इसके coordinates x1 y1 थे. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख रहा हूँ, पता नहीं आप रिटेन करोगे कि नहीं, अभी तो समझ लो पहले. This is r1 vector and this is r2 vector. So delta r vector is what? r2 vector minus r1 vector. Hello? Yes sir. Yes sir. Okay. How will you express r1 vector in terms of x1 y1? x1 I cap Say plus y1 j r1 cap. vector is correct. r1 vector is x1 I plus y1 j. Clear hai? Yes. हाँ sir. Okay. Now, what is r2 vector in terms of x and y? x2 I cap plus x2 I cap y2 j plus cap. x2 I plus y2 j. x2 I plus y2. Now, let us try to find what is r delta r vector, that is r2 vector minus r1 vector. So
R2 vector minus R1 vector, that is delta R vector S1 x2 I plus y2 j minus x1 I plus y1 j. Open the bracket, x2 minus x1 I y2 minus y1 j. This is delta R vector. Hello. Yes, sir. ये step clear है? This step is clear to everyone. This is the Yes. definition of displacement. Okay. Okay. Please all of you respond. ना नहीं तो नहीं Yes. समझेगा मुझे कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा. This is position vector at some instant t1. When you were somewhere here. So your position vector is x1 I plus y1. This is position vector at point t2. At time t2. x2 I plus y2 j. डेल्टा आर वेक्टर आई नो इज R2 माइनस R, दोनों को माइनस किया, ये लिखा. ठीक है. इस फिगर में इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज x1, दिस इज x2. सो दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है यहां से, this is x1 and this is x2, so this is x2 minus x1 and this is ये actually y2 minus y1 है. एक फ्रेश फिगर बना देता हूं मैं, थोड़ा सा अलजेब्रिक साइन का कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए चेंज करता हूं, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. This was x1 y1 and this was x2 y2. This is, ये जो आपका है ये x2 minus x1 है और ये y2 minus y1. ये फिगर में देखा, ये y2 है, ये y1 है, ये y2 minus y1. ये x2 है, ये x1 है, ये x2 minus x1. दिख रहा है? हाँ सर. सबको नजर आया? Yes. काव्या, Yes, sir. आशु दिख रहा है? आशु रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. Okay. See, so this is x2 minus x1 and this is y2 minus y1. एक्चुअल में विजुअलाइज करना है. एक्चुअल में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है. दिस इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट? बट हम उसको ऐसे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y. तो अगर डेल्टा r वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, तो x2 minus x1 I को क्या पढ़ोगे आप? x2 minus x1 I को क्या Displacement in पढ़ोगे? x. डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, या इसी को बाद में मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये सब दिमाग में एकदम डल जाना चाहिए. अलोंग x एक्सिस, इसी को डेल्टा x से भी डिनोट करूंगा बाद में, x2 minus x1. So delta r vector is actual displacement. What? Delta r vector is actual displacement. But x2 minus x1 I का भी कुछ significance है. x2 minus x1 I represents displacement along x or component of displacement along x axis. Okay? Yes. Yes sir. Convinced? Chinmay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. बाकी लोग भी बोल रहे हो सर्वेश फिर लौट के नहीं आया. सर्वेश टाइम से पहले आ गया, फिर टाइम पे आया नहीं आया ना सर्वेश. मुस्कान आ रहा है समझ में? मुस्कान? Okay. So this is x2 minus x1. Now y2 minus y1 I is what? What is y2 minus y1 j? Displacement along y. Displacement along y. So this
करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। इसको कल को मैं डेल्टा y से भी डिनोट करूंगा बाय 2। सो डेल्टा y आई भी लिखूंगा मैं। सो कई बुक्स में आप देखोगे ऐसा कुछ लिखा होता है, डेल्टा r वेक्टर इज डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj। स्पेशली एनसीईआरटी में इतने सिंबल्स मिलेंगे, इतने सिंबल्स नोटेशंस मिलेंगे कि आदमी की स्टार्टिंग में बच्चों की पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्या लिखा हुआ है। तो ये एक नोटेशन लिखा हुआ, डेल्टा आर वेक्टर इज डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj। तो क्या मतलब है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Change in डेल्टा x आर वेक्टर component and change डिस्प्लेसमेंट, in y यस, component. तो चेंज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y है, और कंपोनेंट अलोंग x है, कंपोनेंट अलोंग y, राइट? सो दैट इज डेल्टा x एंड डेल्टा y। क्लियर है? Yes. काव्या? Yes, sir. ओके, तो ये चीज हो गई ना। नेक्स्ट, so now we have understanding of displacement, right? अभी को एक पोजीशन दिया होगा तो we can determine displacement, उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, सब कुछ, x y कंपोनेंट सब कुछ निकाल सकते हैं, राइट? अभी एक क्वेश्चन बस मैं करके देता हूँ आपको, बिकॉज आई एम श्योर आपने किसी ने वर्कशीट नहीं सॉल्व किया होगा। वर्कशीट सॉल्व किया किसी ने? उत्कर्ष, वर्कशीट सॉल्व किया था? सर वो जो पूरा नहीं किया। सॉरी, पूरा नहीं किया, ओके। हाँ, चिन्मय क्या बोल रहे हैं? आई टेक अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सपोज थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड वाला इस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आर वेक्टर इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड क्वेश्चन में क्या था? टी स्क्वायर आई प्लस 2tj, टी स्क्वायर आई प्लस 2tj। बहुत कुछ इसमें निकालने बोला था। सबसे पहला क्या बोला था? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन। बताओ क्या एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट? What is x coordinate of position and y coordinate of position? x coordinate is t square and y coordinate is 2t. X as a function of time is t square, y coordinate as function of time is 2t. Next I have asked position at 0 seconds. Position at 0 seconds. What is position at 0 seconds? 0 sir. 0. 0 0 0 0 0। कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बात करो तो 0 0, आर वेक्टर के टर्म्स में तो 0। पोजीशन एट 10 seconds, 10 seconds पूछा था ना, 10 seconds। पोजीशन एट 10 seconds, व्हाट इज पोजीशन एट 10 seconds? हेलो, तो इजी वाला पार्ट चल रहा है, बताओ सितेश। 120. 120. 100,20 नहीं? Yes, sir. हाँ तो रिस्पॉन्ड तो करो ना। 120। आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे हम? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? हेलो, पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? 100i कैप प्लस 20j कैप, खत्म हो गया। 100i प्लस 20j। नेक्स्ट क्या पूछा था मैंने? इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पाथ? Slope of tangent. No, equation of path as a direct relation between x and y. X and y as a function of t are given. You have to express x in terms of y or y in terms of x. Direct relation between x and y. Y square is equal to 4x. Y square is equal to 4x. See,
y का स्क्वायर इज 4t square but t square is x. So equation of path is y square equals to 4x. See, equation of curve or equation of line is relation between x and y coordinate of every point on it. So basically when I say equation of path, so on whatever path the particle is moving, you have to find relation between x and y coordinate of the points on that path. And how do we do that? X is given as t square, y is given as 2t. So eliminate t. See, अगर ये पॉइंट किसी को नहीं समझ में आता तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसको 4 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इसको स्किप करो मत. उत्कर्ष, Yeah, sir. दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. चलो मैं फिर भी जबरदस्ती एक्सप्लेन कर देता हूँ. See, at 0 second, what is position of the particle? 0. 0. At 0 seconds, what is position of particle? 0, 0. So 0 seconds में u है 9. 1 seconds में what is position? X coordinate is 1, y coordinate is 2. This is 1, 2. At 2 seconds, 4, 4. 2 seconds पे 4, 4. 3 seconds, 9 and 6. 9 and 6. नहीं, ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे कर्व बनेगा. ये वो पाथ है, इसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं. ट्रेजेक्टरी या पाथ, पाथ ऑफ पार्टिकल. इस पाथ का कुछ इक्वेशन होता है. दिस इज अ कर्व एंड इट इज नोन बाय सम इक्वेशन. और वो इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं, वो है बेसिकली एक्स और वाई के बीच का डायरेक्ट रिलेशन. देखो 0, 0, एक क्या था 1, 2, ये था 4, 4. तो देखो y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो और इसका 4 टाइम्स इक्वल होता है. y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो इसका 4 टाइम्स इक्वल होता है. तो यहाँ पे 3 था, 9 and 6, इसका स्क्वायर करो और इसका 4 टाइम्स इक्वल होता है. तो वही कर्व का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. एंड हाउ डू वी गेट दैट? बहुत आसान है. x और y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया होगा ना, तो यू हैव टू एलिमिनेट t. t का वैल्यू क्या है? y/2. तो y स्क्वायर बाय 4, 4 इधर ले आओ, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. क्लियर है? वापस एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आ गया. थोड़ा सा उत्कर्ष वापस एक्सप्लेन करूं? No, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट वाज आइडेंटिफाई शेप. ये शेप क्या था? ये कर्व का इक्वेशन देख के याद आता है? ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला. व्हाट इज शेप ऑफ दिस पैराबोला? एक का स्क्वायर है, दूसरे का नहीं है, सो इट्स अ पैराबोला. सो जो पाथ है वो पैराबोलिक इन शेप है. ठीक है. देन आई हैड आस्क्ड टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना याद है? कैसे निकालते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते थे? 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. ये गलती से कभी जेई मेंस में एक बार आया है, मतलब लास्ट ईयर ही आया था. जेई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और कभी किसी टॉपिक में यूज हो जाता है. तो ये, और ये भूलता बहुत जल्दी, बिकॉज बहुत कम क्वेश्चंस किसी भी बुक में आपको बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिलेंगे. नहीं, तो ट्राई टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्कल का हर पॉइंट पे कर्वेचर सेम होता है, रेडियस हर जगह सेम होता है. बट अगर कोई इरेगुलर कर्व होगा, जैसे ये कर्व है, अब ये सर्कल तो नहीं है, बट अगर इसका छोटा सा पार्ट मैं एज्यूम करूं तो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज पार्ट ऑफ सम सर्कल. तो उस पॉइंट पे उसका रेडियस कुछ और होगा. यहाँ पे इसका कर्वेचर का रेडियस कुछ और है. यहाँ पे रेडियस कम होगा, यहाँ रेडियस ज्यादा होगा. स्ट्रेट लाइन का इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट पे रेडियस, राइट. तो जैसे ऐसा कर्व बना हुआ है, सब फ्लैट जा रहा है, फिर ऐसे, तो यहाँ पे रेडियस बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ रेडियस अचानक से कम होगा. सो रेडियस हर पॉइंट पे अलग अलग होता है. वी डोंट कॉल इट रेडियस, एक्चुअली वी कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर. कितना कर्व्ड है वो. अगर एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो कर्वेचर कम है, एकदम सडन ऐसे क्यूट टर्न ले लिया तो कर्वेचर बहुत ज्यादा है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम हो जाए. तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर एस्टिमेट करने का एक फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में,
1 plus dy by dx whole square whole raised to 3 by 2 upon d square y by dx square. तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना है? y is 2 root x. तो dy by dx कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएट करो, 2 कांस्टेंट 1 upon 2 root x. फिर से डिफरेंशिएट करो, d square y by dx square करो. ये x raised to minus half है, minus half x raised to minus half minus 1. That is minus 1 upon 2 x root x. This is d square y by dx square. So radius of curvature is 1 plus 1 by x raised to 3 by 2 1 upon 2x root x. Sign की जरूरत नहीं because it's just radius of curvature, मतलब measure करना है उसका. x का value सर वो रूट एक्स है ना? at t equals to 2 seconds में ना. Yeah, root x. This one, this dy one, by so the dx. root, ये x root x है, root x. हाँ. dy by dx में 1 upon root x है. 2 constant, root x का 1 by 2 root x. तो 2 to cut 1 by root x बचेगा. उत्कर्ष डाउट है dy by dx में? नो सर क्लियर. सर सेकंड डिफरेंस वापस बता दीजिए. सेकंड डिफरेंशियल कुछ नहीं बेटा, सीधा डिफरेंशियल करेंगे. ये क्या है? x रेज टू माइनस हाफ है. ये हाफ था, ऊपर गया x रेज टू माइनस हाफ हो गया. यस सर. डिफरेंशिएट कर दो, माइनस हाफ x रेज टू माइनस हाफ माइनस 1 तो माइनस 3 by 2. तो माइनस 1 अपॉन 2 नीचे लेके x रेज टू प्लस 3 by 2 दैट इज x रूट x हो गया. तो माइनस 1 by 2 x रूट x आ गया. समझा? अभी x की वैल्यू आपको पुट करनी है. तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स की बात हो रही थी. तो 2 सेकंड्स पे x कोऑर्डिनेट कितना था? 4 था ना, 4. तो 1 by 1 plus 1 5 by 4 raised to 3 by 2 मतलब 5 by 4 root 5 by 4 upon 1 plus 2 x का वैल्यू 4 into root 4 is 2. तो 4 gets cancelled, plus 2 gets cancelled. So 5 root 5 upon 2. This is radius of curvature at this point. इस point पे जो radius of curvature है 5 root 5 upon 2. नहीं समझा? No one responding. इतना complicated था क्या? डेरिवेशन वाला ही पार्ट नहीं समझा, बाकी सब समझा है. कौन सा पार्ट नहीं समझा? सब्स्टिट्यूशन. नहीं, वो सेकंड डेरिवेशन जो आपने किया ना फंक्शन का. ये भी सेकंड, अभी भी नहीं समझा सेकंड डेरिवेटिव? See, dy by dx is 1 by root x. ये x raised to half है, ऊपर लेके जाओ x raised to minus half होगा. Now differentiate again. तो सेकंड डेरिवेटिव को d square y by dx square लिखते हैं हम लोग. इसको डिफरेंशिएट करो, minus half x raised to minus half minus 1, that is minus 3. इसको नीचे लेके आओ, x raised to plus 3 by 2 मतलब क्या हुआ? x root x हुआ. x raised to 3 by 2 का मतलब x root x. अब भी नहीं समझा? हाँ सर समझा. Okay. Now substitute the values. ये फॉर्मूले में डाल दो. 1 plus dy by dx is 1 by root x. का स्क्वायर is 1 by x raised to 3 by 2 upon d square y by dx का that is 1 upon 2x root x. ये सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो x plus 1 root x plus 1 upon x root x whole upon 1 upon 2x root x. ये कैंसिल हो जाएगा. 2 गया ऊपर, 2x plus 1 root x plus 1. अब at t equals to 2 पूछा था. t equals to 2 seconds पे x coordinate 4 था. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 2 into 5 into root 5. So हाँ लास्ट टाइम मैंने कुछ गलत कर दिया था क्या? 10 root 5 is answer. लास्ट टाइम मैंने कुछ गलत कर दिया. Anyway. So 10 root 5 is answer. If it is still not clear, please let me know. I'll explain again.
समझा Clear, sir. Sir, it's clear. Okay, okay. So this is how we find radius of curvature. Clear? Then I have asked to find displacement and distance traveled, right? So chalo next class में करता हूँ displacement and distance traveled. But please try other questions also. कुछ और parts दिए हुए इस question में, आप try करो. नहीं आएंगे तो next class में doubt भी पूछो. And distance traveled and displacement इस case में next class में discuss करते हैं. Okay? Yes, sir. Thank you, Yes. sir. चलो I'll stop here. Bye, sir. Thank you. Bye. कल मिलते हैं.